नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसावुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् हातं बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में। આજે રવિવારનો દિવસ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના વ્યાખ્યાન પછી આપણે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય સ્વરૂપે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની હાજરીમાં સુવર્ણપુરીમાં જેવી રીતે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાયની એક પ્રથા અને એક પરંપરા હતી, સ્વસ્થ પ્રથા હતી, સ્વસ્થ પરંપરા હતી કે ભાઈ સોમવારથી શનિવાર સુધી ત્યાં તો દિવસો જુદા હતા, ક્યારેક બુધવાર, ક્યારેક ગુરુવાર, ક્યારેક શુક્રવાર પણ હોય. તો ગુરુદેવ શ્રી જ્યારે વ્યાખ્યાનોમાં એવું બોલે, શનિવારના પ્રવચનોમાં યાદ કરે કે ગઈકાલે વાત આવી હતી, પછી કહે કે ગઈકાલે નહીં પરમ દિવસે, કેમ કે ગઈકાલે આપણું શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય હતું એવું બોલે. ખ્યાલમાં આવ્યું? કોઈક વાર એવું થાય, ઘણી વખત મેં બધું કમ્પેરિઝન કરીને જોયું છે, શુક્રવારના પ્રવચનોમાં યાદ કરે આ વાત ગઈકાલે આવી હતી, પછી કહે કે ગઈકાલે નહીં પરમ દિવસે બુધવારે આવી હતી, કેમ કે આપણે ગુરુવારે તો શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય લીધું હતું. એટલે મારા મગજમાં વર્ષો સુધી પ્રશ્ન હતો જ કે આ ગુરુદેવશ્રી આમ કેમ કહે છે કે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય હતું, શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય હતું. પછી કેટલાક બ્રહ્મચારી બહેનો સાથે ચર્ચા કરીને પછી મને ખબર પડી કે આ શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય એટલે ગુરુદેવ શ્રી ગાથા પાઠનો એક શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય તરીકે લેતા. એમાં પરમાગમોની બધી ગાથાઓ, ઇષ્ટોપદેશ, સમાધિ શતક, નિમિત્ત ઉપાદાનના દોહરાઓ, આ બધા જે ભાવના પ્રધાન અધ્યાત્મ રસથી સભર જે બધી ગાથાઓ છે, કાવ્ય છે, એમની એક પાઠ અને આરાધના સ્વરૂપે ત્યાં પાઠ કરવાની એક પદ્ધતિ હતી. અને મને એ હૃદયને બહુ સ્પર્શી, કેમ કે જો એક ગાથા ચાલે, 2 દિવસ ચાલે, 4 દિવસ ચાલે, 8 દિવસ ચાલે, બરોબર, જેમ કે 308 થી 11 4 ગાથાઓ, 13 દિવસના 13 પ્રવચનો છે. હવે તમે વિચાર કરો, કોણ એવો ભાગ્યશાળી છે કે પહેલે દિવસથી 13 સુધી બેઠો હોય? હા, 2 દિવસ બેઠા હોય, ત્રીજે દિવસે હોય નહીં, ચોથે દિવસે હોય. ખ્યાલમાં આવ્યું? તો આ ગાથા પાઠને લીધે શું થાય? 10, 15, 20, 25 ગાથાઓનું પારાયણ થાય. સંક્ષેપમાં વિષય વસ્તુ ખ્યાલમાં આવે. તો આ ક્રમમાં ગુરુદેવશ્રીના કાળે એમની હાજરીમાં જે આ ગાથા પાઠ અને આજે એક સ્વસ્થ, હું તો કહું છું એક સામાયિકનો જ ભાગ છે. આ બિલકુલ એક વિશુદ્ધ સામાયિકનો ભાગ કે શાંતિથી બેઠા અને કલાક સુધી આપણે ગાથા પાઠ પૂરા કર્યા. તો એમાં તો 100 ગાથાઓ પતી જાય, 150 ગાથાઓ, એટલે એક ગ્રંથ 50 થી કાંઈ એક ગ્રંથ પૂરું થઈ જાય. શાંતિથી બધી ગાથાઓનો કેવળ પાઠ કરીએ તો આપણે તો થોડુંક એમાં સુધારો વધારો કરીને થોડીક નવી પદ્ધતિ એ લઈએ છીએ.
થોડો ખાસ ખાસ ગાથાઓનો અર્થ છે, વિષય વસ્તુ છે, જેથી 10, 15, 20 જે પણ ગાથાઓનો પાઠ આપણે કરીએ તો એમાં શું આપણે બોલીએ છીએ, શું ગાઈએ છીએ, શેનો પાઠ ચાલે છે, શેની આરાધના ચાલે છે, એ બધું આપણને ખ્યાલમાં આવે. કેમ કે નિત્ય નવા નવા બધા શ્રોતાઓ જોડાયેલા હોય. હા, મને યાદ નથી કે આપણી આ સભામાં અત્યારે જે આપ જોડાયેલા છો એમાંથી 8-10 જણા તો સાવ નવા જ છે. બાકી રેગ્યુલર જે ત્યાં રાજકોટમાં આપણે સ્વાધ્યાયમાં લેતા ત્યારે જે ગાથા પાઠમાં રેગ્યુલર આવતા એમાંના 4-5 ચહેરાઓ મને દેખાય છે. એટલે ભાવ તો ખ્યાલમાં આવવો જોઈએ ને, કેવળ ગગડાવી જવું એમેય નહીં. હવે શું ગાઈએ છીએ, શું બોલીએ છીએ, એ વિષયનો રહસ્ય આપણને મગજમાં આવવો જોઈએ. ચિંતનનો વિષય છે આ, ભાવનાનો વિષય છે. આત્મ ભાવના ભાવતા જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે, એમ જે બોલીએ કે આત્મ ભાવના ભાવતા, તો આત્મ ભાવનાનો વિષય છે. આજે હમણાં 8 દિવસથી જયપુરમાં નિયમસારનો વિધાન ચાલે છે. આજે પૂરો થયો. તો આજે છેલ્લો જે શુદ્ધ ભાવ અધિકાર હતો એ શુદ્ધ ભાવ અધિકારની ગાથાઓ અને એનો અભ્યાસ બધો હતો. સવારે 6:45 થી 8 વાગ્યા સુધી વિધાન હોય. તો હું એમાં બેઠો હતો, સાંભળતો હતો. એમાં છેલ્લે જે આવે ને એ ગાથા કે નાના જીવા નાના કમ્મા, જીવ નાના પ્રકારના છે, કર્મ નાના પ્રકારના છે, ઉદય નાના પ્રકારના છે, તો કોની સાથે વાદ વિવાદ કરવાનો? કેમ કે વાદ વિવાદે આમાં પાર પડાય એવી આ વાત તો છે નહીં. ખ્યાલમાં આવ્યું? એક એવી વાત આવી. અને છેલ્લે છેલ્લે એક બહુ સરસ વાત આવી. સાવ છેલ્લે 100 સમજો ને કે 85 નંબરની ગાથા, એમાં તો એવી વાત આવી કે અમે નિયમ અને નિયમનું ફળ જે બતાવ્યું છે એ પ્રવચન ભક્તિથી બતાવ્યું છે. અમને પ્રવચન ભક્તિ છે એટલે અમે નિયમ અને નિયમ સારના ફળની વાત અત્રે લખી છે. પ્રવચન ભક્તિ એટલે સમજાણો? પ્રવચન ભક્તિ એટલે પ્રવચન કરવાનો શોખ છે એમ નહીં, મારું સાંભળે એમ નહીં. પ્રવચન ભક્તિ નહીં. એટલે દિવ્ય, ઉત્કૃષ્ટ. વચન એટલે વાણી. એટલે કેવડી ભગવાનની જે દિવ્ય ધ્વનિ છે, એ દિવ્ય ધ્વનિમાં આવેલું જે વસ્તુનું નિરૂપણ છે, તે વસ્તુનું સ્વરૂપ અને નિરૂપણ જગતજનોને પણ મળી રહે તત્વની ભાવનાથી, સાધર્મી વાત્સલ્યથી, માર્ગ અને માર્ગની પ્રભાવના બની રહે એને માટે અમે આ નિયમ અને નિયમસારના ફળની વાત કરીએ છીએ. અમારે કોઈ શોખ નથી, અમારે કોઈ લોકેશના નથી, અમારે કોઈ સાંભળે તો સંભળાવીએ એવું નથી. સાંભળે તો ભલે, ન સાંભળે તો ભલે, આપણે સારું પીરસવું છે. ભૂખ્યો હશે એ ખાયા વિના રહેવાનો નથી, તરસ્યો હશે એ પીધા વિના રહેવાનો નથી. હા, ખોલીને પરબ બેઠા. હું તો ઘણી વખત આ ગાથા તમને સંભળાવું છું. ગાથા તો નહીં પણ પંક્તિ સંભળાવું છું. હા, ગાથા અને કલશની, ગ્રંથો અને શાસ્ત્રોની, ખોલીને પરબ બેઠા. પરબ શું થાય? પરબ પેલા ઓલા રેલવે સ્ટેશન ઉપર, હા રેલવે સ્ટેશન ઉપર નહીં, પાણી પ્યાવું પ્યાવું કહેવાય આપણે. હા, જ્યાં જઈને આપણે જળ આમ હાથ લંબાવીએ અને જળ પછી આપણા હાથમાં આવે. કલકત્તા વાળા પીધા છો ક્યારે? હા, પ્યાવુમાંથી. હા, તો એ જે હોય એને કહેવાય પરબ. હા, હા, ગાથા અને કળશની, ગ્રંથો અને શાસ્ત્રની, ખોલીને પરબ બેઠા. જે આવશે એ પીશે પોતાની તરસ પ્રમાણે. શું કીધું? ફરીથી નહીં બોલું. હા, શું કીધું? જે આવશે એ પીશે
હા, પોતાની તરસ પ્રમાણે, જેને જેવી જેટલી તરસ હોય તે તરસ પ્રમાણે પીશે. આપણે માથાકૂટ નહીં કરવાનું. આપણે તો પ્રવચન ભક્તિથી પીરસવાનું. હા, જેને લાભ લેવું હોય ઈ લે, ન લેવું હોય ઈ ન લે. આમસ્તે જ્વાઇનનો જમાનો ક્યાં છે? લેફ્ટનો જમાનો છે. કાંઈક ટકોર સમજાણી? હા, આવ્યા એનો ક્યાં જમાનો છે? ભાગ્યા એનો જમાનો છે. હા, કેટલી ઉપયોગની અસ્થિરતા બોલો. હા, વંદનાબેન, હું આ સવારે છે ને 6:30 પોણા 7 વાગે ચાલુ થઈ જાય તો ડૉક્ટર સાહેબનું પ્રવચન, ગુરુદેવશ્રીનું પ્રવચન, બેનશ્રીની ચર્ચા, પછી ગુરુદેવશ્રીનું પ્રવચન, પછી સુનિલભાઈ શાસ્ત્રીનું પ્રવચન, બધું ચાલુ હોય. સમજાય છે? હા, આપણે પતંગિયાની જેમ ઉડ ઉડ નહીં કરવાનું, શાંતિથી બેસવાનું. જાગતો જીવ, એવું છે ને, બોલ. જાગતો જીવ ઊભો છે, એ ક્યાં જાય? અહીંયા એવું છે. હા, રખડતો જીવ ઊભો ક્યાં છે? એ તો રખડ્યા કરે છે. આપણી સ્થિતિ તો એવી છે ભાનુબેન. હા, રખડતો રામ ઠરી ઠામ ક્યાં હોય? શ્રદ્ધા સમજાય છે? હા, કેમ હમણાં સ્વાધ્યાયમાં હોતી નથી? બહુ ગેરહાજરી હોય છે. હા, સમજાણું શું કીધું? રખડતો રામ ઠરી ઠામ ક્યાં? આ નવી કહેવત, હમણાંનું પ્રોડક્શન. રખડતો રામ ક્યાં ઠરી ઠામ? એ ઠરે જ ક્યાં? હા, ઉડ 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 કરે. ઉપયોગની ચંચળતા જે છે એ શુદ્ધોપયોગ વીતરાગ માર્ગની વિરાધના છે. ઉપયોગને ભમાવવું ન જોઈએ, ઉપયોગને સ્થિર રાખવાનું. બરાબર? ચલો, આ થોડીક શિખામણ કહો, ભલામણ કહો, શીખ કહો, શિક્ષા કહો, વિચારબોધ કહો, તત્વબોધ કહો, બોધિ બીજ કહો, જે કહો ઈ. હા, એ વાત પૂરી. હવે આપણે આગળ, યાદ છે આપ સૌને? આરાધના સાર, દેવસેન આચાર્યની આરાધના સાર ઉપર આપણે 10 ગાથાઓનો પાઠ છેલ્લા રવિવારે આપણે લીધેલા. આગળની 10 ગાથાઓ, એના ઉપરનો ચર્ચા સ્વાધ્યાય સાથે આપણે આગળ લેશું. અને પહેલી 10 ગાથાઓનો પાઠ તો લેશું જ આપણે. પહેલી જે 10 ગાથાઓ છે એનો પાઠ તો લેશું જ. અને આપ સૌને સ્વાધ્યાય ગ્રુપ ઉપર, બરાબર, આ ગ્રંથ મેં મોકલી આપેલું છે અનુવાદનું, એટલે આપ સૌ પાસે છે જ. હા, એમાં જોજો, આપ સૌ પાસે જે છે એમાં પહેલી ગાથાથી આપણે ગાથાઓનો પાઠ કરીએ. હા, હું પ્રયત્ન કરું છું. કદાચ તમારી પાસે ન હોય, અત્યારે 7 વાગે જો ન હોય કદાચ, તો તમારી સામે અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર હું મૂકવા માટેના પ્રયત્ન કરું છું. જો આવી ગઈ, જો બધા જોજો. 10 ગાથાઓનો પાઠ પહેલા લેશું આપણે. निर्मल गुणों से अलंकृत शत इंद्र वंदित वीर को मैं सिद्ध को नम कर कहूँ आराधना के सार को ज्ञान दर्शन चरित तप समवाय ही आराधना का सार जो व्यवहार निश्चय भेद से द्वय विध कहा. પહેલી ગાથામાં સિદ્ધોને વંદન કર્યા, આરાધના સાર કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી. બરોબર? બીજી ગાથામાં આરાધનાની વ્યાખ્યા આપી. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ. જ્ઞાન આરાધના, દર્શન આરાધના, ચારિત્ર આરાધના અને તપ આરાધના. આ ચારેયનો સમવાય એટલે સમૂહ, એને આરાધના કહેવામાં આવે છે.
અને એમના વ્યવહાર અને નિશ્ચય બે ભેદ છે, બે પ્રકાર છે, એવી રીતે એમાં વાત લીધી. હવે આગળ ત્રીજી ગાથા. आराधना है चार यह व्यवहार से जिनवर कहे दृग ज्ञान चारित और तप आराधना का सार है. બહુ સરસ ગાથા છે. જુઓ, આરાધના હે ચાર, ચાર આરાધનાઓ છે. यह व्यवहार से जिनवर કહે. जिनेन्द्र भगवान આ બધું વ્યવહારથી કહેવામાં આવે, કેમ કે ભેદ થયા ને, તો ચાર આરાધનાઓ છે એમ કહેવું ઈ વ્યવહાર છે, વ્યવહારથી. और दृग ज्ञान चारित और तप आराधना का सार है. जो આરાધના ચાર છે એમ કહેવું ઈ વ્યવહાર, પણ એમાં દ્રગ એટલે દર્શન આરાધના, જ્ઞાન आराधना, चारित्र आराधना અને तप आराधना. क्या कहा? आराधनाएं चार हैं ये कहना व्यवहार से, और दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना जो है ये तप आराधना के सार हैं, आराधना के सार हैं. देखो, ग्रंथ का नाम है आराधना सार, तो आराधना का सार ऐसी उसकी व्युत्पत्ति. कि आराधना का सार क्या है? कि दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना. इसका अपन लोग ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, दर्शन की शुद्धि, ज्ञान की विशुद्धि, चारित्र की विशुद्धि, स्थिरता और तप की विशुद्धि का होना यही आराधना का सार है. मतलब आराधना करने का, आराधने का यही सार है. यदि यह विशुद्धि रूप दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप नहीं होते हैं तो हमने आराधना की ही नहीं. बराबर? इसका नाम आराधना सार. दूसरा इसका अर्थ ऐसा है, आराधना सार अर्थात भगवती आराधना का सार. क्योंकि भगवती आराधना ग्रंथ जो है, जो शिवार्य आचार्य का शास्त्र है, सर्व प्राचीन शास्त्र है, इसमें संलेखना और समाधि का बहुत विस्तृत वर्णन है, और इन चार आराधनाओं का ही उसमें सार है. तो उस भगवती आराधना का भी यदि सार कोई है तो यही है, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना. ठीक, आगे चौथी गाथा. जिन सूत्र भाषित युक्तियों से भाव के श्रद्धान को सम्यक आराधन यही जिन देव कहते हैं अहो. देखो, इसमें क्या कहा? इसमें सम्यक्त्व की आराधना मतलब दर्शन आराधना, जिन सूत्र भाषित युक्तियों से, कि जिनागम में जिस प्रकार से युक्तियां दी गई हैं, जिनागम में जो अनुमानात्मक, अनुभव परक युक्ति, जितनी जो भी युक्तियां न्याय और प्रमाण से, नए निक्षेप आदिक से, जिन जिन युक्तियों के माध्यम से जिनेन्द्र भगवंतों के शास्त्रों में, जिन वचनों में कही गई युक्तियां हैं, उन युक्तियों से ही भाव का श्रद्धान होना. भाव मतलब हार्द, भाव मतलब भावार्थ, गूढ़ार्थ, उसका श्रद्धान होना, वही श्रद्धान सम्यक्त्व की आराधना है, वही श्रद्धान दर्शन की आराधना है. देखो, दर्शन आराधना भी कहते हैं अथवा सम्यक्त्व आराधना भी कहते हैं. ठीक, यहाँ दर्शन आराधना मतलब वह दर्शन ज्ञान गुण में जो दर्शन वाली बात आती है उसकी बात नहीं है, सामान्य अवलोकन रूप दर्शन की बात नहीं है. दर्शन आराधना से मतलब है यहाँ सम्यक्त्व की आराधना. एक और बात मैं आप सबसे कहूँ, जैसे अभी जयपुर में जो भालील साहब के जो वहाँ स्वाध्याय चल रहे हैं, उनके स्वाध्याय में यही बात अभी 2-3 दिन से आ रही है. कल का व्याख्यान तो बस इसी दृष्टि से था कि सम्यक तो मतलब मात्र सम्यक दर्शन, वह सम्यक तो नहीं है. क्या कहा?
मात्र सम्यक दर्शन वह सम्यक तो नहीं है। श्रद्धा का सम्यकपना, ज्ञान का सम्यकपना, चारित्र का सम्यकपना, तीनों का सम्यकपना वह सम्यक है। और उन तीनों की विपरीतता का होना वह मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व मतलब केवल मिथ्या दर्शन नहीं, और सम्यक्त्व अर्थात केवल सम्यक दर्शन नहीं है। क्योंकि हम आप लोगों की एक आदत हो गई है, सम्यक्त्व अर्थात सम्यक दर्शन। ऐसा नहीं होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। श्रद्धा का सम्यकपना, ज्ञान का सम्यकपना और चारित्र का सम्यकपना। अरे ये भी गिनती के तीन है। मैं तो कहता हूं सर्व गुणांश ते सम्यक्त्व। कहा कि नहीं श्रीमद जी ने, सर्व गुणांश ते सम्यक्त्व। अरे अनंत गुणों के सम्यक परिणमन रूप जो दशा होती है उसका नाम सम्यक्त्व है। समझाए छे क्या कहा? हाँ, समझ में आ रही बात है? हाँ, आज कई लोग वीडियो फॉर्म में क्यों नहीं है? हाँ, पंडित जी के सामने आप प्रस्तुत होइए वीडियो फॉर्म में, थोड़ा सा एकाग्रता बनी रहती है। हाँ, नहीं तो प्रमाद के अवसर बने रहते हैं। घर के काम भी होते रहेंगे और स्वाध्याय भी होता रहेगा। हाँ, तो प्रमाद की छटक बारी है वो। तो आप केवल ऑडियो में मत रहो, आप आइए। हम कोई भूत नहीं है। हाँ, पंडित जी हैं तो आप आइए, बिल्कुल वीडियो फॉर्म में आइए। थोड़ा सा आनंद आता है सामने आप लोगों की चेहरे मोहरों की भाषा देख करके। हमें या तो बोलने का मन करता है प्रज्ञावेन, या तो बोलने का बंद करने का मन करता है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग लाइव रहे ना तो थोड़ा अच्छा रहता है। हाँ, शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि के साथ थोड़ा सा बिल्कुल स्वाध्याय जैसा होना चाहिए। हाँ, ख्याल आ गया? इसलिए बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी जीवंतता, चैतन्यपना अपने में। हाँ, गुरुदेव श्री का जब चल रहा होता है तो कंपलसरी आप वीडियो बंद करो, ऑडियो भी बंद करो। उस समय तो जूम के ऊपर चलता रहता है, ग्रंथ पढ़ना होता है। लेकिन अब जब अपन चर्चा कर रहे हैं आमने सामने बैठ करके, तो थोड़ा सा आमने सामने होना चाहिए। खैर, क्या कहा मैंने? सर्व गुणांश ते सम्यक। हाँ, है ना, सर्व गुणांश ते सम्यक। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। हिंदी में उसे सिकंजी कहते हैं, शरबत। हाँ, तो शरबत किसे कहते हैं? पानी भी होवे, नींबू भी होवे, मसाला भी होवे, हाँ, संचरपन होवे, हाँ, दुनिया भर का इलायची भी होवे, दालचीनी भी होवे, मसाला भी होवे, थोड़ा सा कुछ उसमें और कलर भी होवे। वो सब समुच्चय का नाम शरबत है कि नहीं? केवल पानी का नाम शरबत है? केवल नींबू का नाम शरबत है? तो जब अनेक प्रकार का मरी मसाला जिसमें इकट्ठा होता है उसका नाम शरबत है। ऐसे सर्व गुणांश ते सम्यक। क्या कहा? मात्र श्रद्धा का सम्यक परिणमन उसका नाम सम्यक्त्व नहीं है। सम्यक दर्शन अलग है और सम्यक्त्व अलग है। अनंत गुणों का सम्यक परिणमन वह सम्यक्त्व है, वो सम्यक्त्व आराधना। ये एक खास बात याद रखना आप लोग, इसमें जो विशेष शब्द का प्रयोग किया है। आप कल का ये प्रवचन सुनेंगे ना, बहुत सुंदर है वो मैं अभी अपलोड करूंगा आज दिन में। आप लोग सुनना, कल का रात्रि का जो स्वाध्याय है बारील साहब का, उसमें सब चर्चा बहुत जोरदार हुई है सब। हाँ, सुनना चाहिए। हाँ, अपने को 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे सब स्वाध्याय करना चाहिए। हाँ, चलिए, इतनी बात समझ में आई, सम्यक्त्व वाली बात। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहा। आगे की गाथा स्क्रीन के ऊपर मैं फिर एक बार यहाँ अंकित करता हूँ, तो आप लोगों को उसकी बात समझ में आएगी। तो दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, बराबर, चारित्र आराधना और तप आराधना, इस प्रकार से 4 आराधनाएं वेदों से कहना ये व्यवहार है। और सम्यक्त्व आराधना जो है इसमें चौथी गाथा में कि जिनागम में कही गई युक्तियों से भाव का श्रद्धान करना। भाव, हाँ?
तत्वार्थ कहा ना, तत्वार्थ, उसमें अर्थ जो है उस अर्थ का श्रद्धा, शब्दार्थ नहीं। शब्द का अर्थ अलग और तत्व का अर्थ अलग। अर्थ मतलब जिसका जो जैसा स्वरूप है उस स्वरूप का श्रद्धान करना, उसका नाम यहाँ भाव भाषण का होना, ये अपन टोडरमल जी साहब कहते हैं भाव भाषण। तो ये सम्यक्त्व आराधना की बात है। ठीक है, बात समझ में आई। आगे पांचवी गाथा। जीवाधिकाधिगम तथा जिन सूत्र एवं अर्थ की जो भावना कहते, इसे आराधना है ज्ञान की। ज्ञान की आराधना किसे कहते हैं? देखो, जीवादि का अधिगम, जीवादि का अधिगम मतलब ज्ञान, जीवादि तत्वों का ज्ञान होना, जिसे अपन लोग तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान का होना, 6 द्रव्यों का ज्ञान होना, 9 पदार्थों का ज्ञान होना, 7 तत्वों का ज्ञान होना, बराबर। और जिन सूत्र एवं अर्थ की, जिन सूत्र मतलब जिनागम, जिन वचन, जिन गाथाओं का, जिन सूत्रों का, जिनेन्द्र भगवंतों के वचनों का, और उन वचनों के साथ साथ उनके अर्थ की भी भावना होना। देखो क्या गजब की बात है। भावना क्षणिक नहीं होती है, भावना निरंतर प्रक्रिया का नाम है। क्या कहा मैंने? भावना निरंतर प्रक्रिया का नाम है। भावना कोई क्षणिक प्रक्रिया नहीं होती है। जैसे अपन कहते हैं ना, आत्म भावना भावता जीवल है केवल ज्ञान रे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो ये क्या है? आत्म भावना भावना जीवल है, आत्म भावना भावता जीवल है केवल ज्ञान रे। आत्म भावना को भाते भाते केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। हाँ, तो भावना भाते मतलब सुबह दोपहर शाम, कब कहते? निरंतर। हाँ, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। कब भव भोगों से विरक्त होते हैं? कब? अरे 24 घंटे, जब से दीक्षा ली तब से, जब तक देह नहीं छूटे तब से। क्या कहा? और हम आप भी वैरागी हैं। कब वैरागी हैं? जब समय सार के आंगन में बैठते हैं तब, फिर धंधा व्यापार में चले जाते हैं तब, फिर वैराग्य खत्म। बात समझ में आ रही है? हाँ, भगवान आत्मा समय सार सुन रहे हैं तब, और फिर रसोई करने गए, धंधा व्यापार में, सब सब मिट जाता है कि नहीं अपना तो। हाँ, गृहस्थों का जीवन कैसा और मुनिराजों का जीवन कैसा, आप सोचो तो सही। वहां एक बार जैनेश्वरी दीक्षा ली, दिगंबर दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद देह जब तक नहीं छूटे, चाहे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो चाहे मोक्ष की प्राप्ति हो, देह नहीं छूटे तब तक संसार शरीर और भोगों से वैराग्य वैराग्य वैराग्य। हाँ, है कि नहीं? धन्य जीवन मुनिराजों का। हाँ, अपना तो सुबह 1 घंटा छूटे, फिर दिन भर धंधा व्यापार, फिर शाम को आधा पौन घंटा छूटे, फिर तो है ही विषय भोग आदि अन्य क्रिया। मतलब देखो, गृहस्थों का जीवन और मुनिराज का जीवन कितना फर्क है। हाँ, इसलिए 5 परमेष्ठियों में मुनि भगवंतों को भी स्थान दिया गया है। अरहंत परमेष्ठि वीतरागी के बगल में उनको स्थान दिया गया है। क्या कहा? अरहंत और सिद्ध भगवंतों के बाजू में उन्हें बिठाया गया है। नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। हाँ, 5 परमेष्ठि पदों में उनको स्थान है, क्योंकि उनमें वह पवित्रता है। किसी पंचम गुणस्थानवर्ती क्षुल्लक ऐलक को क्यों नहीं रखा गया 5 परमेष्ठियों में? क्यों किसी सम्यक दृष्टि सौधर्म को नहीं रखा गया? क्यों किसी सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को नहीं रखा गया? क्यों किसी सम्यक दृष्टि बाहुबली को नहीं रखा गया? सोचो आप,
किसी क्षायिक सम्यक दृष्टि को रखा है 5 परमेष्ठियों में कि नहीं? अरे व्रती संयमी पंचम गुणस्थान वर्ती क्षुल्लक और ऐलक को नहीं रखा गया, तो फिर अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती की तो बात ही अलग है ना, उसको कहां आएगा, नंबर ही कहां आएगा उसका। देखो एक जिन वचन है, सूत्र है, मैं बोल रहा हूं, सुनना आप ध्यान से। संयम से पूज्यपना प्रकट होता है। क्या कहा? संयम से पूज्यपना प्रकट होता है। आप टोडरमल जी साहब के मोक्षमा प्रकाशक का मंगलाचरण पढ़ो, जो मंगलाचरण मतलब केवल काव्य नहीं, 8 पेज का जो गद्य में लिखा हुआ पूरा है मंगलाचरण। मंगलाचरण क्यों करते हैं, मंगलाचरण का क्या प्रयोजन है, अनंत आदिक से प्रयोजन की सिद्धि कैसी होती है, उस प्रकरण में वहां टोडरमल जी साहब ने एक बात लिखी है, वीतराग विज्ञानता से पूज्यपना प्रकट होता है। क्या लिखा है? ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। कल रात में मैंने जो होमवर्क दिया था, 4-5 लोगों ने मुझे भेजा था, हाँ, स्क्रीनशॉट निकाल करके भेजा है। लेकिन फिर भी अब 40 सुनते हैं और 4 मुझे भेजते हैं, तो अभी भी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी। मेजॉरिटी होनी चाहिए। अभी 10-20 लोगों को मेहनत करनी चाहिए। कई लोगों ने लिखा है, पेज नंबर भी लिखा है, उसके नीचे अंडरलाइन भी किया हुआ है, अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमन करती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं। ये वाला जो वाक्य मैंने कल बोला था, तो ढूंढा है, 4-1 लोगों ने ढूंढा है। खैर, होमवर्क किया करो आप लोग, अभ्यास किया करो। बात अपनी ये चल रही थी, अरहंत आदिक से प्रयोजन सिद्धिया वगैरह जो विषय है मोक्षमा प्रकाशक में, वहां लिखा है वीतराग विज्ञान पने से पूज्यपना प्रकट होता है। और उन्होंने दूसरी एक बहुत बढ़िया बात लिखी, अरहंत और सिद्धों को तो पूर्ण वीतराग विज्ञानपना प्रकट है, बराबर। अरहंत और सिद्धों को, आचार्य उपाध्याय और साधु, इन तीनों परमेष्ठियों को आंशिक वीतराग विज्ञानपना प्रकट है, ऐसा लिखा हुआ है। ये बहुत जोरदार कोटेशन है, याद रखने लायक है, बहुत मार्मिक है। अरहंत और सिद्धों को तो परिपूर्ण वीतराग विज्ञानता, और आचार्य उपाध्याय और साधु को आंशिक वीतराग विज्ञानता। तो आखिरकार तो पांचों में वीतराग विज्ञानता है ना, किसी को आंशिक है, किसी को पूर्णतः है, तो वीतराग विज्ञान पने से ही पूज्यपना प्रकट हुआ। कैसी गजब की बात है बोलो। अब नीचे 5वें गुणस्थान वर्ती को आंशिक है, फिर भी उसको नहीं रखा, चौथे वाले को भी आंशिक है, उसको नहीं रखा, साधु परमेष्ठी को रखा, उपाध्याय को रखा, आचार्य को रखा, अरहंत और सिद्धों के साथ। कुछ सोच रहे हैं आप लोग, विचार आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? वीतराग विज्ञान पने से ही पूज्यपना प्रकट होता है, बस ये बात चल रही है अपने। सोचो सोचो आप लोग। आपके पास पीडीएफ तो है ही, अब आप निकालो पीडीएफ, देखो उसमें जीवाधिकाधिगम तथा जिन सूत्र एवं अर्थ को की जो भावना कहते, इसे आराधना है ज्ञान की। मैं उस शब्द का अर्थ कर रहा था, भावना, जिन सूत्र की भावना, जिन अर्थ की भावना, बराबर, जीवादि के अधिगम की भावना। तीनों बातें पकड़ में आ रही है बातें आप लोगों को? जीवादि का अधिगम, फिर लेना भावना, मतलब तत्व ज्ञान प्राप्त करने की भावना, जिन सूत्र की भावना और जिन सूत्र के अर्थ की भावना होना, इसको यहां ज्ञान आराधना कहते हैं। देखो कितनी जिम्मेदारी का काम है। ये रूटीन नहीं है अपना, ये स्वाध्याय कोई रूटीन जड़ क्रिया नहीं है। ये चाहे अपन सुन रहे हो चाहे सुन नहीं रहे हो,
फिर भी अंदर में तत्व ज्ञान संबंधी भावना होनी चाहिए। क्या कहा? करोड़पति कभी करोड़पति भूल जाता है कि मैं करोड़पति नहीं हूं, ये भूल जाता है? वहां गुरुदेव कह रहे हो ना, हे भव्य, हे भव्य, ये सुन रहा होता है, तब भी वो करोड़पति की गर्मी रहती है, मैं तो करोड़पति। आप ठीक है, आप भव्य कह रहे हैं इसलिए मान लेता हूं, लेकिन मैं तो भव्य हूं। क्या कहा मैंने? मैं तो करोड़पति हूं। देखो वो कैसी उसकी बोलते हैं गर्मी, गर्मी कैसी चढ़ी रहती है, हाँ, संपत्ति की, पैसों की। हाँ, सबसे ज्यादा गर्मी कौन सी है? कषाय की गर्मी है कि बाहर की गर्मी है? ये धूप वाली जो गर्मी है सूरज की, ये सबसे ज्यादा गर्मी है? ये कुछ नहीं है। कषाय की गर्मी सबसे ज्यादा गर्म है। शल्य है ना, वो शल्य मान्यता है। इसलिए भावना, निरंतर भावना का होना, जो भावना कहते इसे आराधना है ज्ञान की। सुनना, और शास्त्र को मात्र पढ़ लेना उसका नाम भावना नहीं है। तत्व ज्ञान की निरंतर भावना का होना उसका नाम ज्ञान भावना, ज्ञान आराधना। यहां तो हर कोई बात आराधना के फ्लेवर में चलेगी। क्या कहा? अभी अभी कुछ आधा घंटा पहले गुरुदेव श्री बोल रहे थे 68 नंबर की गाथा में, आत्मा उपादे छे एम આપણે ધારી લીધું, પણ ઉપાદે ક્યાં થયો? ऐसा बोले गुरुदेव श्री। ઉપાદે છે એમ ધારી લીધું, એ ધારણા કરી લીધી, એનું નામ કાંઈ આત્મા ઉપાદે થયો નહીં। ઉપાદે છે એમ ધારવું અને ઉપાદે છે એમ અનુભવવું, એ બેઉમાં બહુ ફેર છે। धारणा मात्र नहीं है तो शास्त्र का पठन मात्र स्वाध्याय अथवा ज्ञान की आराधना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चारित्र 13 भेद धारे, असंयम द्वयविध तजे, भाव शुद्धि हेतु यह चारित्र आराधन कहे। चारित्र 13 प्रकार के। हाँ, कौन से प्रकार होते हैं? 13 प्रकार। कौन से शास्त्र में लिखा है ये 13 प्रकार का चारित्र? हाँ, सबसे बड़ा आगम प्रमाण, सबसे बड़ा आगम प्रमाण नियम सार का व्यवहार चारित्र अधिकार। कौन सा? नियम सार का व्यवहार चारित्र अधिकार। हाँ, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। क्या कहा? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, कितने हो गए? 13 हो गए ना। ये 13 प्रकार के चारित्र समग्र चरणान योग में 13 प्रकार के चारित्रों में इनकी चर्चा आती है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। और नियम सार का तो व्यवहार चारित्र अधिकार ही इसके लिए। इन 13 चारित्रों के लिए उन्होंने कई गाथा उन्होंने लिखी है। कुंद कुंद आचार्य देव ने समझाए छे। हाँ, अपन ने नियम सार का भी गाथा पाठ किया है, उसमें व्यवहार चारित्र अधिकार भी हम आप लोगों ने लिया था एक दिन पूरा। तो 13 प्रकार के चारित्रों को धारण करना और द्वयविध असंयम तजे, 2 प्रकार के असंयम को छोड़ना। 2 प्रकार के कौन कौन से असंयम? एक द्रव्य असंयम, एक भाव असंयम। जैसे अपन कहते हैं द्रव्य संयम और भाव संयम, ऐसे द्रव्य असंयम। द्रव्य असंयम मतलब बाह्य व्यवहार में जो असंयम है उसको भी छोड़ना, और अंतरंग में जो कषाय और अभिप्राय के स्तर पर जो असंयम है उसका भी त्याग करना। कितना लिखोगे आप लोग? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे शास्त्र के शास्त्री लिख रहे हो। समझ में आ रही बातें कितनी मार्मिक हैं? हाँ? अंतरंग असंयम, बहिरंग असंयम, अरे व्यवहार असंयम, निश्चय असंयम।
એક અંદરનો અસંયમ, એક બહારનો અસંયમ. હા, જેને હજી બહારનો અસંયમ નહીં છૂટે એને અંદરનો અસંયમ શું છૂટે? જેને હજી વ્યવહારનો અસંયમ નહીં છૂટે એને નિશ્ચયનો અસંયમ ક્યાંથી છૂટે? ऐसा ऐसा समझना. अंतरंग असंयम, बहिरंग असंयम, निश्चय असंयम, व्यवहार असंयम. हाँ, और एक मैं भेद बताता हूं, सुनना. थोड़ा सा विचित्र भेद है, शास्त्रों में नहीं है ये, थोड़ा सा समझने के लिए. एक बहिरात्मा का असंयम और एक अंतरात्मा का असंयम. बिल्कुल नई बात है, याद रखना. इसके पीछे मेरे लॉजिक है, मैं जो कह रहा हूं. बहिरात्मा का असंयम मतलब मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र. ओके, अनादि जो असंयम है बहिरात्मा का असंयम, और अंतरात्मा का असंयम मतलब अंतरात्मा की भूमिका में चारित्र मोहनी के जो दोष हैं उन दोषों का त्याग करना, उसका नाम अंतरात्मा का असंयम. समझाए छे? हाँ? कितना 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 विषय है वो तो बोलो आप. हाँ, अंतरंग असंयम, बहिरंग असंयम, निश्चय असंयम, हाँ, व्यवहार असंयम, बहिरात्मा का असंयम, अंतरात्मा का असंयम, दर्शन मोहनी संबंधी असंयम, चारित्र मोहनी संबंधी असंयम. इन सब का त्याग करने की प्रेरणा इसमें आचार्य दे रहे हैं. आगे, भाव शुद्धि हेतु यह चारित्र आराधन कहे. क्या कहा? भाव शुद्धि के लिए. भाव शुद्धि, भाव शुद्धि. मैंने अगले लास्ट संडे कहा था, सोनगढ़ के स्वाध्याय भवन में एक वाक्य लिखा हुआ है, दर्शन शुद्धि मूળમાં મૂળ કોઈ છે તો दर्शन शुद्धि છે. याद आ गया? हाँ, लाल अक्षरों से लिखा हुआ है, लाल अक्षरों से स्लोगन लिखा हुआ है, मूળમાં મૂળ कोई शुद्धि છે तो दर्शन शुद्धि. हाँ, श्रद्धा की शुद्धि. तो भाव शुद्धि वाली बात है. आगे बढ़ते हैं. निज शक्ति के अनुसार उद्यम करे 12 तपों का. ये तप आराधना निज शक्ति के अनुसार, शक्ति को नहीं छुपाना. अंतरंग तप, बहिरंग तप मुनिराज के लिए तो है ही, लेकिन श्रावकों के लिए भी अपनी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति कहते ना, यथाशक्ति. 16 कारण भावनाओं में लिखा है, शक्तितः तप, शक्तितः त्याग. अपनी शक्ति के अनुसार तप करना, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना. निज शक्ति के अनुसार उद्यम करे 12 तपों का, जिन सूत्र में निश्चित यही आराधना तप है कहा. ये तप की आराधना है, जिनवानी में ये तप की आराधना कही गई है. अपनी शक्ति को छुपाए बिना अपनी शक्ति के अनुसार हमें अंतरंग और बहिरंग तप करने चाहिए. प्रमाद का पोषण नहीं करना चाहिए. बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, अपने विवेक बुद्धि से हमें बराबर अंतरंग और बहिरंग तपों को आचरना चाहिए. देखो, दान दे नहीं सकते हैं, लेकिन दान देने की भावना तो कर सकते हैं कि नहीं? સુરત વાળા સમજાય છે? દાન આપી ન શકીએ પણ દાન આપવાની ભાવના તો કરી શકીએ કે નહીં? હા, આંગણે મુનિરાજ નહીં આવે પણ મુનિરાજ આવે એવી ભાવના તો કરી શકીએ કે નહીં? સમયસાર બધું સમજાય નહીં પણ સમજાઈ જાય એવી ભાવના તો કરી શકીએ કે નહીં? હા, 2 કલાક 3 કલાક 4 કલાક સ્વાધ્યાય કરવાની ભાવના હોય પણ ન થાય
પણ કરવાની ભાવના તો હોવી જોઈએ कि नहीं? समझ में आ रहा है? सारी दुनिया को हम सुखी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया सुखी होवे ऐसी भावना तो हो सकती है कि नहीं? भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सारा संसार सुखी हो, ये भावना तो भा सकते हैं ना? हाँ, वो मेरे से ही हो हमसे ही हो उसकी बात नहीं है, लेकिन भावना तो भा सकते हैं कि नहीं? ऐसा तो यहाँ चारित्र आराधना में ये बात आई, भावना की बात। तपों की भी, तप की भावना, अंतरंग बहिरंग, नाम याद है नाम अंतरंग बहिरंग के? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग, ध्यान, ये सब अंतरंग बहिरंग स्वाध्याय जो हैं, इनके नाम याद होने चाहिए अपने को। सारा विषय टंकोत्कीर्ण होना चाहिए। समझाय छे बधाने? पंडितजी आना माटे શું કરવાનું? 4-6 કલાક સ્વાધ્યાય કરવાનું। હા, 4-6 કલાક 10 કલાક બેસીને વારંવાર સાંભળો। धारणा नहीं करवानी, अवधारणा करवानी। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। 8वीं गाथा। इस तरह चौ आराधना से सब विकल्प विमुक्त हो, निरालंबी आत्म की आराधना नय शुद्ध से। इस प्रकार से चारों आराधनाओं के लिए 4 गाथाएं लिखी और अब कहते हैं इस प्रकार 4 आराधनाओं को विकल्प विमुक्त होकर के, विकल्प रहित होकर के हमें भावना भानी चाहिए, क्योंकि आत्म स्वभाव तो निरालंबी है और निरालंबी आत्मा की साधना हमें भानी चाहिए। शुद्धने से आत्मा का आलम्बन लेना चाहिए। भावना 4 आराधनाओं की भाव, लेकिन 4 आराधनाओं की भावना बातें बातें आलम्बन तो अपने आत्मा का हमें लेना चाहिए, क्योंकि आत्मा कैसा है? निरालंबी। देखो विशेषण कैसा है? निरालंबी आत्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निज आत्म का श्रद्धान एवं ज्ञान कर निज में रमे, इंद्रिय विषय जो तजे निश्चय से उसे आराधना। निज आत्मा का श्रद्धान, निज आत्मा का ज्ञान, निज में रमे और इंद्रिय विषयों को त्याग करना, सच में निश्चय से उसे आराधना कहते हैं। तो चारों आराधनाओं की व्याख्या समझाने के बाद ये समझा रहे हैं कि आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की रमणता और इंद्रिय विषयों का त्याग का होना, उसका नाम आराधना। हाँ, याद छे गया रविवार में एक वाक्य याद अपाયું तो आप सबने, परथी खस स्वमावस एटलू करतो बस, ये वाली बात है इसमें। इंद्रियों के विषयों का त्याग करो, आत्मा की श्रद्धा करो, आत्मा का ज्ञान करो और आत्मा की रमणता करो, उसी का नाम परमार्थ आराधना। वह आत्मा ही ज्ञान दृग चारित्र और तप रूप है, इसलिए राग द्वेष तज निज आत्माराध्य है। वह आत्मा ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपरूप है। ये भी देखो बहुत गजब की रहस्य की गाथा है। आत्मा स्वयं दर्शन है, आत्मा स्वयं ज्ञान है, आत्मा स्वयं चारित्र है और आत्म स्वभाव स्वयं ही तप है। इसलिए राग और द्वेष तज, राग और द्वेष का त्याग करके अपने आत्मा को जो आराध्य है उसकी आराधना हमें करनी चाहिए। इस प्रकार से आत्म स्वभाव ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र स्वरूप है, तप रूप है। चारों आराधना में आत्मा ही है, उसकी आराधना हमें करनी चाहिए। ये 10 गाथाएं हुई, बराबर। अभी 11 से लेकर के 20 नंबर तक की गाथा तक मैं केवल पाठ करता हूं, उनका अर्थ और स्वाध्याय ये अपन लोग
अगले जब भी रविवार के दिन लेंगे तब लेंगे, बराबर। निज आत्मा आराध्य है, आराधना निज आत्मा, आराधना करता तथा आराधना फल आत्मा। जिन सूत्र में पर्याय नय से कहीं चौ आराधना, परमार्थ से आराधना का इन्हीं को कारण कहा। कार्य कारण जान कर कालादि लब्धि पांच को, पाकर सदा भव मुक्ति हेतु क्षपक आराधन करो। निज ज्ञान नय शुद्धात्मा की नहीं की आराधना, तिर्यंच नारक नर गति में जीव यह भ्रमता सदा। भव हेतु है जो उन विविध आलंबनों का त्याग कर, आराधना शुद्धात्मा की करो नित तुम है क्षपक। चार विध आराधना जो जिन वरेंद्रों ने कही, मुक्ति का कारण उसे भी कहा है व्यवहार से। सम्यक अरु सद्ज्ञान युत हो परिग्रह द्वय त्याग कर, क्षीण मोही भव्य मृत्यु निकट आराधन करे। भव सुख विरत वैराग्य युत हो परम उपशम भाव पा, तपो से तन क्षीण मृत्यु निकट आराधन करे। विरत आत्म स्वभाव में पर संग सुख रस त्याग कर, तज राग द्वेष मरण समय में जीव आराधन करे। जो रतन त्रयमय आत्मा को छोड़ पर चिंतन करे, विराधक वह जीव निश्चय से कहा यह जानिए। जो आ छेल्ली 20 नंबरनी ગાથામાં રત્નત્રય સ્વરૂપી આત્માને જે છોડે છે અને જે પરનું ચિંતન કરે છે, સંયોગોનું ચિંતન કરે છે, એવા ઈ બહિરાત્મા વિરાધક, ઈ આરાધક નથી, વિરાધક જીવ છે. નિશ્ચયથી તે જીવ વિરાધક છે. એવી આ બહુ અઘરી ગાથા અને જેને કહીએ આપણે ઠપકો એમાં આચાર્ય આપણને આપ્યો છે કે જે આત્માની આરાધના નથી કરતા તેઓ વિરાધક જીવ છે. એવી આ ગાથા અહીં પૂરી થઈ. તો આજે આપણે શરૂઆતની 10 ગાથાઓનો પુનરાવલોકન, વિષયોનો થોડુંક મંથન આપણે કર્યું છે અને 11 થી 20 નંબરની ગાથાઓનો પાઠ છેલ્લે લીધો અને આનો વિશ્લેષણ અને આનો સ્વાધ્યાય વગેરે આપણે પછી જ્યારે સ્વાધ્યાયમાં મળીએ ત્યારે રવિવારના 9 થી 9:45 વચ્ચેના આ સમયગાળામાં આપણે લેશું. અત્યારનો સમય પૂરો થયો છે, હું વિરામ લઉં છું અને આપણો કરનાર યોગનો જે ક્લાસ છે, કરનાર યોગનો 11 અને 12મા ગુણસ્થાનના અન્વયે જે કક્ષા છે એ 10:15 થી 11 વાગ્યા સુધી હશે. યાદ રાખજો, 10:15 થી 11 વાગ્યા સુધી 45 મિનિટ ક્લાસ ચાલશે. ત્યારે આપણે બધા મળીએ છીએ. બોલી જનવાણી માતા કી જય હો.